Ladies and gentlemen, this event is very unique. Why? Because we are all here together to celebrate humanity. Above all, we are actually promoting the culture, a green culture, the better environment. We are working for future. تو آپ نے یہ اتنی خوبصورت جو ایگزیبیشن دیکھی ہے اور یہ رنگوں بھری کہتے ہیں نا پینٹنگ والی جس نے ماحول بنا دیا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی پرسن تو ہوگا جس نے یہ سارا سما باندھا ہوگا, تو وہ دس نان ادر دین سدرا ناصر جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, بیسیکلی کریٹر ہیں اس پورے ایونٹ کی, اس پورے ایگزیبیشن کی. تو چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی جو انہوں نے خوبصورت پینٹنگ والی ایگزیبیشن کی ہے, کوئی آبجیکٹو تو ہوگا, کوئی ایمبیشن تو ہوگا, تو وہ ہے کیا؟ Assalamualaikum. Thank you so much. So the main ambition of this show was کہ ہم اپنے آرٹ کو ایکسپلور کریں. ہماری جو بیوٹیفل کنٹری ہے پاکستان, اس کا آرٹ, اس کا کلچر ہمیشہ بیک اسٹیج پہ رہتا ہے. تو ہمارا مین موٹو تھا کہ ہم پاکستان کے آرٹ کے اور کلچر کو ایک سافٹ امیج کے ساتھ پبلک کو دکھائیں. ویری نائس, ویری نائس. تو پاکستان کا سافٹ امیج اور پبلک کو دکھانا ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے پینٹر حضرات ہیں, جو ٹیلنٹ ہے KPK کا, اس کو پوری دنیا میں بھی دکھانا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کا خود کا کیا رول رہا یہاں پہ, اینڈ وٹ ڈڈ یو لرن آؤٹ آف اٹ؟ سو دس ہیز بن اباؤٹ, آئی تھنک ہمارا 5 سے 6 شو ہے. تو ہر شو میں ہم اپنی ہی ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں سیکھتے ہیں کہ کیسے کیا کیوریٹ کرنا ہے, کس ٹائپ کا کلچر کس صوبے میں زیادہ فٹ ہوتا ہے. تو یہی سب چلتا رہتا ہے. ونڈرفل ورک دیٹ یو ڈیڈ, بہت خوبصورت کام ہے, اینڈ کانگریچولیشنز فار دا 5th and 6th ایگزیبیشن. ایون کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بٹ دا ڈیڈیکیشن از دیر اینڈ دا ایمبیشن از. Nasir to come on stage and have a word with us. کریسٹ آرٹ گیلری 2008 میں اسٹارٹ ہوئی ایک خاص ویژن کے ساتھ کہ پاکستان کی جو رچ ثقافت ہے, اس کا کلچر ہے, ہیریٹیج ہے, اس کو آگے فرنٹ فیس پہ رکھا جائے اور اس کو ہم پروموٹ کریں اور اس کو کسی طرح ہم آگے کی طرف لے کے جائیں تاکہ گلوبل انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان جیسا موتی چمکے. اس کے بعد ہم نے کئی میورلز ہم نے کراچی کے شہر میں بنائے, انڈر پاسز کے اندر میورلز بنائے جس میں ہم نے ریپرزینٹ کیا کراچی کے کلچر کو, سندھ کے کلچر کو, پاکستان کے کلچر کو. ہمارے ساتھ بہت فیملیز موجود ہیں, ڈفرینٹ, وہ انجوائے کر رہی ہیں, ڈفرینٹ ٹیبلز پہ بیٹھی ہیں اور آپس میں دیکھ کے بات چیت کری. ہم نے سوچا ذرا ان سے بھی پوچھا جائے کہ آخر ان کے کیا ویوز ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے یہاں پہ کسی نے بتایا کہ بڑے مشہور نام ہے ان کا جی, انکل ٹونی. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے ہی میں کہتی ہوں مسٹر جینٹل مین لگ رہے ہیں اور بڑے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں اس ایوننگ میں. تو سب سے پہلے تو سر ویری نائس سوٹنگ, آئی مسٹ گیو دا کریڈٹ ٹو یو. جی میرا انکل ٹونی نام کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ میں نے نور جہاں ہماری اوپر پسند کرتی تھی. جی جی, فلم اسٹار سے نور جہاں. ہاں, وہ کہتی ہے کیا انکل زمان لگایا ہوا ہے, یور انکل ٹونی. یور انکل ٹونی. پھر میں انکل ٹونی. نور جہاں نے بھی آپ کو انکل ٹونی بول دیا, لیکن آپ تو بہت ینگ ہوں گے. تھا میں اردو پڑھتا تھا, میں انگلش پڑھتا تھا, میں رشین پڑھتا تھا. بیکاز آف دا ڈریسنگ. تو بات ایسے یہ ہے کہ جب پاکستان بنا وی ہیو نو اردو. Oh yes, we didn't had any Urdu. بالکل. اردو آئی ہے مائگریشن. ایسے ہی, very very true. ہماری زبان میں تھی فارسی. جی جی. اور رشین لینگویج میں دونوں زبانیں پڑھی ہیں. جی جی جی. رشین اس لیے پڑھی ہے اٹس نیئر ٹو کوہاٹ. اچھا اچھا. کوہاٹ کی لینگویج اور رشین لینگویج ملتی ہے. جی. جیسے آجن, دعا, ترے, چترے, پیاز, شیش. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات بتائی. اب یہ بتائیے کہ جو آج کی ایوننگ ہے, آپ اس میں آرٹ کا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا کیا ایمبیشن ہے؟ میری بات ہے, جی جی بتائیں. آرٹسٹ بہت ہیں, بہت ہے, جرنلسٹ بہت ہیں, فوٹوگرافر بہت ہیں, جی, لیکن جو کریشن کی ہے دیٹ از تھنگ. کریشن کرنا, کریشن, ہر چیز کریشن کریں دین اوکے. اب مثلا آپ جیسے ہیں, آپ کریشن ہیں, نئی چیز کہانی کرتے ہو, ایسے آرٹسٹ وہ بھی ہے, وہ بھی آرٹسٹ ہو. آرٹسٹ پیدائشی آدمی آرٹسٹ ہوتا ہے. جی اچھا, پیدائشی آرٹسٹ ہوتا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں آپ آرٹسٹ ہیں؟ میں آرٹسٹ نہیں ہوں, میری جو نظر ہے
बस जो आंख देखती है मैं फोटोग्राफी कर लेते हैं, कीड़ा देखते कीड़े की फोटो बना लेते हैं, कबूतर देखते कबूतर, इन रियलिटी नो आर्टिफिशियल। बिल्कुल, तो आपको अल्लाह ने नजर दी है जिसमें हाँ। आपको आर्ट नजर आता हाँ, है। क्या खूबसूरत बात, क्या कि बेसिकली ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आपने सुना ही होगा कि खूबसूरती जो है ना वो आंखों में होती है। तो सर कह रहे, एंटोनी सर कह रहे कि जो आर्टिस्ट होता है और उसको पहचानने वो भी नजर में ही होती है। हमारे साथ नीलम मौजूद है। नीलम से पूछते हैं कि आज की इवनिंग कैसी चल रही है। नीलम, सबसे पहले तो यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो बताइए कि जो एग्जीबिशन है इसका क्या आप इंजॉय कर रहे हैं और क्या मकसद है? नहीं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा इवेंट है। वी गॉट टू सी अ लॉट ऑफ आवर आर्टिस्ट फ्रेंड्स, जिस तरह वन ऑफ माय फ्रेंड्स आई एम सीइंग हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शी इज़ एन आर्टिस्ट। यही इनका भी आर्ट से ताल्लुक़ है, यही ह्यूमन राइट्स एंड आर्ट्स और होम इकोनॉमिक्स के सब स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे आर्टिस्ट दोस्त आए। सो इट्स सो गुड टू सी देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इट्स अ गुड event that we can come together and celebrate art, and considering that I have a background of literature जिसमें हम लोग art और literature को side by side लेके चल रहे होते हैं, so बहुत अच्छा एक reminder है। It's a nice event, yeah. अच्छा, जबरदस्त। नीलम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आप जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हो, थोड़ा उसका बताओ कि आपको ये पैशन है या यू जस्ट थिंक कि नहीं मुख्तलिफ जबानों को सिखाना चाहिए? नहीं, इंग्लिश तो लैंग्वेज तो अलग चीज़ होती है, हम लोग तो लिटरेचर होता है, विच इज़ लिटरेचर इन इट सेल्फ इज़ आर्ट इन वर्ड्स, अल्फाज में जो आर्ट बयान किया जाता है वो। तो डेफिनेटली इट वाज अ पैशन। आई हैव बिन एन अ वेरी एक्टिव राइटर माई सेल्फ, और बहुत एक्टिवली हमने काम किया पेशावर की फ़िज़ा में लिटरेचर को उजागर करने के लिए। उस टाइम पे जब हम स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में होते थे, हर जुम्मे को एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था एंड हम लोग मुशायरे अरेंज करते थे। माशाल्लाह, यू आर सो करेजियस। या पेरेंट्स नहीं छोड़ रहे होते थे, छुप छुप के जाके मुशायरे अरेंज करना, यूनिवर्सिटी में इवेंट्स अरेंज करना। तो वही जर्नी उसी को लेके आगे अपनी पढ़ाई की, और अभी यू नो इट्स रीडिंग एंड राइटिंग एंड लर्निंग एंड टीचिंग। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच नीलम फॉर योर कमेंट्स। और ये जो हमारी आर्टिस्ट खवातीन हैं, सनोबर और आपका नाम साइमा, ये मैं समझती हूँ कि ये आपका असासा है KPK का, और मारुख भी करती हैं। मारुख क्या करती हैं? मारुख ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती हैं। देखें, ऐसी डायनामिक्स खवातीन KPK में देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या पेंटिंग्स करती हैं? कलर पेंटिंग्स करती हैं, वाटर पेंटिंग्स? अस्सलाम वालेकुम। मैं वाटर कलर पेंटिंग करती हूँ, और मैं सर अली साजिद की स्टूडेंट हूँ, और उन्हीं का काम देखने के लिए मुझे पता लगा था, उन्होंने बताया, तो मैं उनका काम देखने के लिए फैसिनेट। उनका काम बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप गौर से देखें तो उनकी पेंटिंग्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसको देख, हाँ लाइफ है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, उसमें आपको समझ आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वो उनका दूसरा ये है कि वो पेंटिंग को पेंटिंग की तरह करते हैं, वो रियलिज्म की तरफ नहीं जाते। वो जो पेंटिंग है हमेशा से उनका ये होता है कि पेंटिंग को पेंटिंग की तरह करो, पेंटिंग को पेंटिंग की तरह करो, वरना पिक्चर के लिए कैमरा है, उसके लिए पिक्चर। क्या बात है, वो उनका जो ये काम है सारा, वो अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएगी। बहुत मजे का काम है। थैंक यू। सॉरी, आपका नाम क्या था? सनोबर, थैंक यू वेरी मच ये खूबसूरत बात शेयर करने के लिए। वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका मैसेज हम तक देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो साइमा, आप बताइए, ठीक है, कभी आपने अपनी ब्लू आंखों को पेंट किया है? ये तो खुद भी एक पेंटिंग है। नहीं, मैंने कभी कोई पेंटिंग नहीं की है। मैंने कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है, लेकिन मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है। फूड एंड न्यूट्रिशन में? हाँ जी, मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ HUD में। प्रोफेसर हैं। बहुत ही आप देख सकते हैं कि जो खवातीन का इमेज है कि KPK में जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बाहर नहीं है, एक्सपोज नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर जगह से हमारे साथ एक खातून बैठी हैं, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, चाहे वो पेंटर हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स है। Maruf is from Momandi Jansi tribal district. माशाल्लाह। I am from Khyber Agency tribal district, and Saima is from is Dawood Zai Peshawar. So that's like a wide range of geographical
amalgamation of all the districts. फारूक ज़ाहिर है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड नाउ इट इज़ आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चदना इन अपर मोमन डिस्ट्रिक्ट. सो बेसिकली हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम मैं करती हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए करती हूँ, क्लाइमेट चेंज पे मैं काम करती हूँ कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो डिफरेंट जेंडर्स हैं उनको वो किस तरह उसके इम्पैक्ट्स क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है उन पर. तो बेसिकली मैं और किरण साजिद जो हैं हम दोनों क्लाइमेट चेंज पे भी काम करते हैं. वो साइकोलॉजी और आर्ट के जो एक्सपेक्ट्स है उसको टच करती हैं और मैं उसको वुमेन और डिफरेंट जेंडर्स जो हैं उन पे काम हम लोग करते हैं. लोग जो कहते हैं कि मतलब खैबर पख्तूनख्वा में औरतें कुछ भी नहीं करती और ट्राइबल्स जो हैं वो लड़कियों को घरों से बाहर नहीं छोड़ते पढ़ने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि मैं और नीलम हम लोग इसी ट्राइबल एरिया से हमारा ताल्लुक़ है और हम लोग इसी माशरे में और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत सॉरी, आपका नाम? मारूक जाहिद. ये असासा है हमारी कौम का, ट्राइबल से आई हैं लेकिन जिस तरह की चीज़ों पे काम कर रही हैं, इनकी ज़बानी सुना और देखा कि ये कितना ज़्यादा पाकिस्तान को प्राउड कर रही हैं. सो प्राउड ऑफ ऑल दीज ट्राइबल लेडीज. कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अस प्राउड. थैंक यू. हमारे साथ आज हैं आमना. उनके साथ हम आज बात करेंगे इंग्लिश में क्योंकि वो उनकी उर्दू थोड़ी सी वीक है. वो कह रही, उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंग्लिश में बात करने के लिए, लेकिन अपने नाजरीन के लिए, अपने सामीन के लिए मैं उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करूंगी. तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आज की इवनिंग का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. सो आमना, प्लीज शेयर विद अस हाउ डिड यू फाइंड द इवनिंग एंड यू नो what is your idea about the whole experience of I tonight? think it was a wonderful evening, and such entertainment should definitely be taking place in Pakistan, Sure. in Peshawar especially. Sure. And it was wonderful. My own son-in-law and daughter too were also part of this. Oh, mashallah. Mashallah, that's so good to hear. Sajid and Kiran. Sajid and Kiran. Oh, Yes. so they had the paintings over here. Mashallah. तो इनके your son-in-law and your daughter. तो इनकी बेटी और जो इनके दामाद हैं उनकी पेंटिंग्स आज जो थी इस एग्जीबिशन में थी, तो इसलिए वो बहुत प्राउड है और कहती हैं कि इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए पेशावर में और इस तरह की एक्टिविटीज़ को होते रहना चाहिए. एंड व्हाट एल्स डू यू हैव इन माइंड फॉर द यंग आर्टिस्ट दैट वांट्स टू कम I फ्रॉम think they are very creative and they should come forward with everything that they have. Because Peshawar is not such a down city. It's a very great city. It's a very great Yes. city. It is called the city of flowers, and that's why it is called the city of flowers, because it has the artists in that. So what about yourself? Don't you? I think you can see a painter in yourself. Do you see an artist in yourself? What do you think about When we yourself? appreciate nature, I think that's all artistry. That also artistry. Yeah. That's such a beautiful line. I must appreciate that. वो ये कहती हैं कि जो बंदा भी आर्ट को, नेचर को, इन सबको प्रमोट करता है, इन सबको पसंद करता है, वो बेसिकली खुद एक आर्टिस्ट है. क्या ये खूबसूरत बात है. और इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम इनका इंटरव्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच आमना. इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. Same here. Thank you so much. You're welcome. Thank you. तो क्या है खूबसूरत बात की ना इन्होंने कि जो भी आर्ट को और आर्टिस्ट को बिल्कुल करता है, अप्रिशिएट करता है, वो बेसिकली असल में आर्टिस्ट का कदरदान है. तो ये इवनिंग सारी की सारी इसी लाइन पर मधु है, इसी लाइन के ऊपर मुनहम है कि जितना भी आर्ट है आपका ना उसको अप्रिशिएट कीजिए, रंगों को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि यही तो रंग है जो हमारी जिंदगी में ना खुशियाँ बखेरते हैं. जी, तो आज हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? साइमा नसीर. साइमा नसीर. तो मैंने ये तो सुना है कि देखें यहाँ तो रंगों की महफिल लगी हुई है, लेकिन उसमें आप भी एक रंग है, एक फूल है, क्योंकि आपका बड़ा ताल्लुक गहरा है आर्ट के साथ. तो क्या करती हैं आप, जरा हमें भी बताइए और नाजरीन को भी. Basically, I'm from Shahid Benazir Bhutto Women University from Department of Art and Design, and I'm assistant professor there. हाँ जी, तो ये HOD है फैशन एंड डिजाइनिंग की शहीद जुल्फकार भुट्टो यूनिवर्सिटी में. तो इनसे पूछते हैं कि आज की जो इवनिंग है, आज की जो शाम है, उनके लिए इनका क्या व्यू है. तो कैसा लगा आपको आज?
It's a great pleasure to come here. Basically जो क्रिसेंट आर्ट गैलरी है उनका ये सेकेंड इवेंट है जो कि हम अटेंड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी एफर्ट है क्योंकि केपी से बाहर जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे आके कोलैबोरेट करते हैं और आर्ट क्रिटिक्स आते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है. तो इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट. इस तरह की कोलैबोरेशंस होनी चाहिए और यहाँ से भी आर्टिस्ट को प्रमोट करके उधर ले जाना चाहिए. वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ पे आने के बाद अपना काम जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक इंट्रैक्शन ऐसी है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग है. और इस फील्ड में आपको पता चलता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में कौन कौन से आर्टिस्ट कैसे कैसे काम कर रहे हैं. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है. और जब तक आप लोग हैं इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, आप इसी तरह का टैलेंट हमें प्रोवाइड करते रहेंगे जो इतना खूबसूरत काम वगैरह सब करते रहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. थैंक यू. हमारे साथ मौजूद है एक और अटेंडेंट जिनका नाम है अफशीन जमान. ये भी ऑल्सो लेक्चरर, शी इज़ ऑल्सो अ लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो कि फैशन और डिज़ाइनिंग में डिपार्टमेंट को देखता है. तो इनसे हम स्पेशली पूछते हैं कि जो पीछे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वाटर कलर पेंटिंग लगी है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इनके जो आर्टिस्ट ने बनाया है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है. जी बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स को और स्पेशल थैंक्स टू गवर्नर केपी कि उन्होंने इतना अच्छा वेन्यू जो है वो प्रोवाइड किया. अच्छा, यहाँ पर जो ये लार्जेस्ट पेंटिंग है वाटर कलर की, मैं ख़ुद भी बेसिकली मेरा डेजिग्नेशन जो है आई एम टेक्सटाइल डिज़ाइनर, बट मैं पेंटिंग भी करती हूँ, फोटोग्राफी भी करती हूँ. डिफरेंट मेरे जो अवार्ड्स हैं वो फोटोग्राफी के हैं और पेंटिंग के हैं इंटरनेशनली. वाटर कलर की इम्पोर्टेंस आज की जो है वो ये है कि स्पेशल थैंक्स टू अली साजिद जो कि केपी के सबसे मायानाज जो हैं वो वाटर कलरिस्ट हैं और जी, और उनकी काविश जो है पेशावर में बहुत ज़्यादा है. और वाटर कलर पेंटिंग की एक सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्मली लोग जब पेंटिंग देखते हैं तो उनके माइंड में होता है कि ऑयल पेंटिंग है, लेकिन वाटर कलर पेंटिंग आप समझें लाइफ की तरह है. जो स्ट्रोक लग गया वो लग गया, उसको ना हम ठीक कर सकते हैं ना बदल सकते हैं. क्या बात तो बात यही है कि वाटर कलर करते हुए बहुत ज़्यादा हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम एक एक स्टेप जो है वो ख्याल से उठाएं. और यही मैसेज है लाइफ का कि लाइफ में जो है हम वाटर कलर की तरह अपनी लाइफ गुजारें कि एक ही स्ट्रोक जो है वो हमारा फाइनलाइज हो और बहुत खूबसूरत हो. और स्पेशली वाटर कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है वही इसकी खूबसूरती है. क्या बात. तो मैं स्पेशल जो है मुबारकबाद दूंगी अली साजिद को कि उनकी काविश और क्रेसेंट आर्ट गैलरी की काविश से जो है पेशावर की ऑडियंस ने और पब्लिक ने इतनी अच्छी एग्जीबिशन देखी. और ये बहुत अच्छी बात है कि जो डिफरेंट हमारे प्रोविंसेस हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि केपी के लोग सिर्फ केपी में ही एग्जीबिशंस करें. मेरा ख्याल है कि आर्ट जो है उसकी कल्चर डाइवर्सिटी ही इस तरह होती है कि हम डिफरेंट अपने प्रोविंसेस में जाके अपनी एग्जीबिशंस लगाएं और उनके साथ के जो लोग हैं आर्टिस्ट की मर्ज जो है एक जो काविश है वो हमारे सामने आए. क्या बात है, क्या बात है. तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया अफशीन आपका. क्या खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया कि जो जैसे ज़िंदगी है ना जी कलर पेंटिंग की, उसमें कलर पेंटिंग की तरह वाटर कलर पेंटिंग की तरह रहें कि एक स्ट्रोक लग गया तो आप इस कलर को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते. तो ज़िंदगी में बहुत एहतियात से कदम उठाइए. इवन जो आपके लफ्ज़ हैं उनको बहुत एहतियात से बोलिए क्योंकि ज़बान से एक दफ़ा जो लफ्ज़ निकल जाता है वो वापस नहीं आ सकता. तो बहुत खूबसूरत मैसेज दिया अफशीन आपने. और ये जो आर्ट है वो कहती हैं कि सिर्फ पेशावर में नहीं, इस पेशावर के जो आर्टिस्ट हैं इनको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज करवाना चाहिए. हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि जैसे कि रिकॉर्ड है आपके पीछे, ये वाकई ही इंटरनेशनल क्रेडिट को गेन करता है और इसको दिखाना पूरी दुनिया में चाहिए. जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं येट अनदर समीर नासिर जो कि CEO हैं इस पूरे इवेंट के.
یہ جو آپ کی رنگا رنگی محفلیں سب دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے, اور ان کے ہاتھ میں جو یہ اعزاز ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس سارے ایونٹ ایگزیبیشن کو فائنل کامیاب کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز فار سچ این ایونٹ. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کیسے آیا کیوریٹ کا, ایکوز آف ہیریٹیج کا, اس کے پیچھے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے ایکوز آف ہیریٹیج کا کانسیپٹ یہ کہ ایکوز کا مطلب گونجیں, ہیریٹیج سے ہم بھاگ نہیں سکتے, اس کو بلکہ سامنے رکھ کے ہمیں لے کے چلیں, تو اس کی گونجیں ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہی رہنی چاہیے اور رہیں گی. اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک ایونٹ کرا ہے. ہم نے ورلڈز لانگسٹ واٹر کلر پینٹنگ کا ڈسپلے رکھا ہے, بہت خوبصورت. تو وہ اس لیے ہم نے اس کو ایکوز آف ہیریٹیج بولا کیونکہ اس میں ہماری A to Z ہیریٹیج اس میں ایک ڈسپلے کی گئی ہے اور بتائی گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ obviously they are all your babies the paintings, لیکن آپ کی سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو متاثر کرتی ہے یا کوئی ایک سٹوری ہے پینٹنگ کے پیچھے, وہ آپ کی کون سی والی ہے؟ کافی سٹوریز ہیں اس طرح, کیونکہ دیکھیں ہر پیس آف آرٹ کی الگ سٹوری ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سی میری فیوریٹ ہے, بیکاز ہر سٹوری ایک الگ سٹوری, آپ کو ایک الگ نظریے سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, الگ اس پہ دکھاتی ہے. جی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے کہتے ہیں ناظرین پہ انہوں نے چھوڑا ہے کہ کون سی پینٹنگ جو ہے سب سے خوبصورت ہے اور کون سی پینٹنگ سب سے زبردست ہے. تو جو ایمرجنگ پینٹرز ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی KP کے سے جو ٹیلنٹ سامنے آنا چاہتا ہے, کیا میسج دیں گے ان کو؟ میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ کسی بھی ٹینشن کے بغیر آ سکتے ہیں. آپ, ہم سارے آرٹسٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, سارے آرٹ لورز کے لیے دروازے کھلے ہیں ہمارے. آپ آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں, آپ آرٹ اپنا دکھانا چاہتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم, مور دین ویلکم. آپ کریسنٹ آرٹ گیلری کا مقصد یہی ہے کہ ہم سارے آرٹسٹ کو, ایک آرٹ کو, ایک ٹیلنٹ کو, کلچر کو ہم لے کے چلیں آگے. زبردست. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو جوائن سچ پریسٹیجیس آئی وڈ سے ایگزیبیشن یا پینٹنگ جو ہمارا یہ آرٹ آف اسکول ہے, اس کو کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری پینل بیٹھی ہوئی ہے, ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, نام سے آپ کانٹیکٹ کریں. جی بالکل, ویب سائٹ ہے ہماری, انسٹاگرام, سوشل میڈیا, ہر جگہ ہم اویلیبل ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے ہمیں آپ کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے بالکل کر سکتے ہیں. ہماری پینل آف ٹیم آپ کو سارا گائیڈ کرے گی, ہیلپ کرے گی, اور آپ کو اب ہمارے پینل پہ لے گی. زبردست. تو فیوچر ایمبیشن کیا ہے, کیا گول ہیں آپ کے؟ 5 سے 6 ایگزیبیشن ماشاءاللہ کامیابی سے آپ لوگ اس کا انعقاد کرا چکے ہیں, لیکن اب مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں, کیا پلانز ہیں؟ مستقبل میں بھی یہی پلانس ہیں. فی الحال ہم ایگزیبیشنس کریں گے, آرٹ کو مزید پروموٹ کریں گے. ابھی ہم نے ایک, جیسے آپ نے دیکھا, ایک ورلڈ ریکارڈ ہم نے توڑا ہے ابھی تک. تھینک یو. اور اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے, ورلڈ ریکارڈ کیا ہے؟ ورلڈ ریکارڈ دیکھیں, یہ ایک لانگسٹ واٹر کلر, یعنی ایک سیدھی لمبائی میں سب سے لمبی واٹر کلر پینٹنگ جو کہ ایک مخصوص ٹائم میں بنائی گئی ہے. 7 سے 8 گھنٹے کے درمیان یہ بنی تھی لائیو. مطلب اس کو یہ نہیں کہ بند دروازوں میں بنایا ہو, یہ سب کے سامنے لائیو تیار کی گئی ہے پینٹنگ. اور اس میں ہم نے ریکارڈ توڑا ہے, اور ماشاءاللہ 2 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک کسی نے نہیں توڑا. اور فیوچر میں آپ کا اور بھی پلانز ہیں کہ اسی طرح کے اور ریکارڈز بھی آپ نے بلٹ اپ کرنے ہیں؟ بالکل ہم نے کر رہے ہیں. ہم ایک اور ریکارڈ پہ ورکنگ کر رہے ہیں جو ڈسکلوز ہے, ابھی ہم بتا نہیں سکتے, لیکن اس پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ کمنگ سون ہے اور جلد سے جلد آئے گی, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, لیکن اٹ ہیز لائک اٹس ورتھ دا ویٹ. سب سے جی بالکل. اور سب سے بڑی جو مان لیے پراؤڈ بات ہے وہ یہ کہ ہم دوسرے ملکوں کو ہم پیچھے چھوڑ کے ہم نے ریکارڈ توڑا ہے. تو یہ ورلڈ ریکارڈ اسی وجہ سے کہلا رہا ہے کیونکہ ہم نے سارے ملک, دبئی, UAE, انڈیا, اٹلی, ان سب کو ہم نے پیچھے چھوڑ کے ریکارڈ توڑا. ماشاءاللہ. کین یو ہیئر دیٹ کہ کتنے سارے ایون یورپ کے بھی کنٹریز ہیں جن کو پیچھے چھوڑ کے یہ ریکارڈ بنایا گیا ہے. پاکستان از سو پراؤڈ آف اٹ. KPK میں جہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آرٹ کی وہ نہیں ہے ویلیو, شاید وہاں پہ اتنا زیادہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ اتنا پنپتا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ریکارڈز توڑے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. آل دا بیسٹ ود یور فیوچر انڈیورز, اور امید کرتے ہیں کہ ایک نہیں بہت سارے ریکارڈ توڑے جائیں گے. ضرور انشاءاللہ ضرور. آج مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج گورنر ہاؤس سے جیسے مہمانوں کو, ایسے دوستوں کو ہوسٹ کر رہا ہے جنہوں نے ورلڈ لانگسٹ واٹر کلر پینٹنگ بنائی. اور آج گورنر ہاؤس کے لان میں جس طریقے سے اس کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے, میں کریسنٹ آرٹ گیلری کی تمام لیڈرشپ کو, تمام وہاں پہ کام کرنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کا
नाम रोशन किए इस खिते में, इस दुनिया में, और जैसे उन्होंने बताया कि 2 साल तक आज तक उनका जो है वो रिकॉर्ड कोई जो है वो बीट अप नहीं हो सका। लिहाजा मेरी दुआ है कि इसी तरीके से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। और मुझे जब पता चला कि ये यहाँ पर आना चाहते हैं, 1-2 दफ़ा हमारी डेट चेंज हुई, अभी भी इन्होंने जब आया तो मसूरी जैसा में 2 दिन और हमने डिले किया, लेकिन हम हमेशा यही चाहते हैं कि मैंने पहले भी ये बात की, हर जगह बात करता हूँ, जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम आता है तो दुनिया में जब भी हम खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि पेशावर पख्तूनख्वा, तो कहते हैं कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म, उसके अलावा जो है कोई चीज़ नहीं होती कि वहाँ पे क्या हालात हैं, एक्सट्रीमिज़म क्या हालात हैं, टेररिज्म क्या हालात हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने इस सूबे का जो है एक सॉफ्ट इमेज देना है, जो आज यहाँ पे इस लॉन में जिस तरीके से हम आज अपने सूबे का एक सॉफ्ट इमेज दे रहे हैं। क्रिसेंट आर्ट गैलरी को ये भी कहूँगा कि जब भी आपको गवर्नर हाउस की ज़रूरत पड़े, ये आपका गवर्नर हाउस है, जब भी आप कोई भी एग्जीबिशन करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे साथ मौजूद है अमानुल्लाह साहब, और ये एक यूनिवर्सिटी है पेशावर की जिसमें बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि ये जो आज उन्होंने एग्जीबिशन को अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पे सब देख रहे हैं आर्ट के हवाले से, उनके क्या तासुरात हैं। शुक्रिया। मैं इस आज के इवेंट के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट और हमारी ज़िंदगी का जो है एक ताल्लुक़ है। इस आर्ट के हवाले से एग्जीबिशन मेरे ख़्याल में मैं जो अटेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम मैं केपीके में फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो है वो इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से ये रेलेवेंट चीज़ें हैं आर्ट को, और इसको प्रमोट करना, इससे कम से कम इस इवेंट से जो है वो आगाही आ जाती है, एक अवेयरनेस आ जाती है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की इवेंट्स होने चाहिए। कम से कम हमें भी सीखने का जो है वो कुछ मिला, प्रोफेसर्स को जो है सुनने का मौका मिला, तो हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह ये है कि एक अवेयरनेस हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप क्या समझते हैं कि क्या पेशावर में इस तरह के इवेंट्स और होते रहने चाहिए, स्पेशली जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, उनको प्रमोट करते रहना चाहिए? बिल्कुल, चूँकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इससे ये है कि हम खुद अपने आप को जो है वो नुमाया करते हैं। कोई और देखेगा तो हमारे कल्चर से जो है वो आशना हो जाएगा, हमारी जो है वो कल्चर प्रमोट होगी, तो हमारी कौमियत प्रमोट होगी, हमें लोग जानेंगे। तो होना चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिया आपने। जी, हमारे साथ मौजूद है एक और ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट जो कि बड़ी ही एनर्जेटिक लग रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड कर रही हैं आज के इवेंट को। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या तारुफ है। जी, आपका नाम? Myself डॉक्टर अख्तर मंशा एंड आई एम फ्रॉम गुजरांवाला। क्या बात है, केपीके से गुजरांवाला से मेहमान आए हैं, क्या बात है। तो किस बात ने आपको इतना इनकरेज किया कि आप इतनी दूर से इस इवेंट को अटेंड करने आई हैं? बेसिकली इसमें जो कल्चर को एक दिया जाता है ना फ्रॉग, मुझे वो बहुत पसंद है, तो इसलिए बस लास्ट टाइम भी मैं आई थी जब हुआ था, तो अभी भी इसीलिए मैं आई हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग का। वो खुद तो नहीं हूँ पेंटर, लेकिन ये कि अच्छा लगता है मुझे, और ये जो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तो बहुत कमाल का लगता है। इसलिए मुझे बस ये लगा कि मुझे इस दफ़ा भी जाना चाहिए, तो मैं आई हूँ देखने। क्या बात है, इतनी दूर से कहती है, एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा मैं इसको अटेंड करने के लिए आई हूँ आर्ट एग्जीबिशन को, ताकि मैं आर्ट को देख सकूँ और उसको कह सकते हैं ना जी कि उसको मैं प्रमोट भी कर सकूँ और इनकरेज भी कर सकूँ। आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पसंद करती हूँ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स।
हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस साहब. इनका ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से है, एनजीओ से है. तो उनसे पूछते हैं कि आज की इवनिंग के बारे में इनके क्या तासुरात हैं. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जहाँ तक इवेंट का ताल्लुक है तो ये अपनी ज़ात में एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है क्रिसेंट आर्ट गैलरी वालों ने. और जहाँ तक इस सब्जेक्ट का या इस थीम का ताल्लुक है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है. इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है. जहाँ तक कि केपीके का ताल्लुक है और इस तरह के बहुत से आर्ट प्रोग्राम, आर्ट्स के बेस पे प्रोग्राम या कल्चरल एक्टिविटीज़, मैं समझता हूँ कि पिछले 1-2 डिकेड से स्पेसिफिकली ये जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से तकरीबन इस पेशावर में रह रहा हूँ, या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की वजह से, फिर जॉब भी यहाँ है, यूएन में काम किया है मैंने, तकरीबन 35 ईयर्स तो मैंने जॉब में गुजारे हैं. तो पिछले 2 डिकेड से ये जो गैप पैदा हुआ है, बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ है इस किस्म के प्रोग्राम्स इनिशिएट करने में, लॉन्च करने में. तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इनको ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए, इसको मज़ीद प्रमोट होना चाहिए, ताकि लोगों में जो तशनगी है या जो इस चीज़ को समझने का की जो कमी है वो उसमें उजागर हो, लोग खुद आएँ, they come forward and participate and initiate such activities. तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए, फर्दर प्रमोट करने के लिए, we need a lot of efforts to be done. A lot of efforts to be done. That's what I have to say. Thank you very much. बहुत ही खूबसूरत मैसेज सर, बहुत खूबसूरत मैसेज मोहम्मद इदरीस साहब का. बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो आपको पता है टेररिज्म से किया जाता है लिंकअप, लोग समझते हैं कि फ्रस्ट्रेट होती है आपकी यंग नेशन, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म देते रहना चाहिए, चाहे वो आर्टिज्म है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, जहाँ पे वो अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन है या एक आप कह सकते हैं कि जो उनकी आवाज़ है वो उसको बुलंद किया जा सके. आपका नाम? जवेरिया. जी जवेरिया, तो आज की इवनिंग के बारे में क्या कहेंगे? बहुत थैंकफुल हूँ सर की और सर कमर की कि उन्होंने ये हमारी एग्जीबिशन मतलब इवेंट मैनेज किया और हमें मौका दिया इतनी बड़ी इवेंट के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एवरीथिंग. सो ये फ्यूचर में भी हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब आगे बढ़ सकती है और हम बहुत इंस्पायर हैं, बहुत मोटिवेट किया सर ने हमें, हमारे अपने टीचर ने भी एंड सर ने भी बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया. सो इंशाल्लाह आई होप कि फ्यूचर में भी हम इनकी तरह बन सके और इंस्पायर हो सके और लोगों को इंस्पायर कर सके. हमारे साथ मौजूद है एक जबरदस्त आर्टिस्ट और इनसे पूछते हैं कि आज की इवनिंग के बारे में इनका क्या ख्याल है. जी, आज के जो इवेंट है उस लिहाज से तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑर्गेनाइजर्स है इस इवेंट के, उनके लिए हम पे तो बहुत थैंकफुल हैं. उन्होंने ये अरेंज करवाया है. जो न्यू जनरेशन है जो आर्ट्स के लिए आएगी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है. और बाकी जो यहाँ का टॉपिक था ह्यूमैनिटीज़ की बेस पर, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है. हमें हमारे यूथ को यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए हर फील्ड में, ताकि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करे और जो ड्रॉबैक्स चल रहे हैं हम उनको रिफ़िल करें और आगे बढ़ सकें. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त. पेंटिंग करते हो? मैंने तो वैसे पेंटिंग नहीं की है, लेकिन शौक़ बहुत था, इसलिए मैंने घर वालों से बड़ी मुश्किल से इस फील्ड में आने की इजाज़त ली है. और अब मैं आज उनको अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि वो देखें कि हमारा ये फील्ड कैसा है और इसमें क्या क्या है, ताकि वो बाद में वो मुझे ये ना कहे कि तुम इस फील्ड में आई क्यों थी. तो हाँ, तो मुझे तो ये फील्ड बहुत पसंद है और शौक़ भी बहुत था. क्या बात है. तो नाम क्या है आपका? अलीबा हिदायत. अदीबा? अलीबा हिदायत. अलीबा. तो अलीबा की बात आपने सुनी कि वो अपनी फैमिली को लेकर आई हैं ताकि उनकी फैमिली को वो दिखा सकें कि आर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है कि ख़वातीन को, लड़कियों को रोका जा सके. और ये उनका मकसद था क्योंकि वो पसंद करती थी. तो यही मकसद है आज की इस खूबसूरत शाम का. जी
جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسر جنہوں نے آج کی شام کی بہت خوبصورت ہوسٹنگ کی, 4 چاند لگا دیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے شو کو آپ کہہ سکتے ہیں ابتدا سے اختتام تک یہ لے کر آئے. تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, کس طرح سے انہوں نے اس کو پایا اور کیا اس کے اندر سے وہ کنٹریبیوشن ہے جو آرٹ کے لیے ہو رہی ہیں. جی یاسر. تھینک یو سو ویری مچ عظما فار بینگ ہیئر, اور آئی تھرلی انجوائے دس ایوننگ. بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اور آئی ٹیل یو کہ میں بڑا خوش ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور خاص طور پہ اس کے کیپٹل پشاور کے اندر اس طرح کا ایونٹ ہونا, اور آرٹس کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے یہ ایک بڑا ہیلتھی سائن ہے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس کا جو ایک امیج ہے نا, جو ریسنٹ پاسٹ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا. تو یہ ایک بہترین موقع تھا کہ آج آرٹ کو اس طرح پروموٹ کیا جائے, اور بہت سارے پاکستان سے جو ہے وہ آرٹسٹ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے کام کا ڈسپلے کیا ہے. ایم امیز کہ اتنا زبردست کام پاکستان میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایونٹ اس طرح کے کر چکے ہیں, بٹ یہ بڑا ایک یونیک ایکسپیرینس ہے, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جو ہم لوگ دیکھ رہا ہوں اور ان کا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوں نا, یہ بڑا خوشی دیتا ہے, اور اس کو دیکھ کے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور اچھا کام دیکھنا بھی چاہتے ہیں. اور یقیناً آج کی اس ایوننگ کے بعد بہت سارے آرٹسٹ بھی یقیناً سامنے آئیں گے. آل ان آل یہ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے. زبردست. تو آپ نے سنا کہ کے پی کے میں جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے اسٹیریو ٹائپ ہے کہ آرٹسٹ نہیں ہے, آرٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, لیکن کتنی اچھی خوبصورت ایوننگ تھی. اور کہتے ہیں نا فرام دا ہارس ماؤتھ, آپ نے ہوسٹ سے سنا کہ کتنا یہاں پہ اچھا پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے یہ جو سفر ہے آج کا ایکوز آف دی ہارٹ جو کہ آپ نے کراچی کے 21 کراچی کی آواز کی طرف سے آپ نے آج سب کے ساتھ ایکسپیرینس کیا, اچھا لگا ہوگا. کچھ آرٹ آپ نے بھی سیکھا ہوگا, کچھ میں نے بھی سیکھا. تو اسی خوبصورت شام کے اختتام پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.